રજવાડા પડી ભાંગ્યા અને એક દિવસ એના કારભારીએ, એના મુનિમે, એના ટ્રેઝરરે આવી અને દરબાર સાહેબને કીધું કે દરબાર સાહેબ, તમારી દાતારી થોડીક ઓછી કરી નાખો. કે કેમ? તો કે તમારી દાતારી એવડી મોટી છે અને આપણી તિજોરી હવે હાવ નાની થઈ ગઈ છે. તમારી દાતારી છે ને આપણી તિજોરીને પરવડતી નથી, માટે જો થોડીક દાતારી ઓછી કરી નાખો તો અર્થવ્યવસ્થા આપણી હચવાઈ જાય. આવું જ્યારે કારભારીએ જસદન દરબાર સાહેબને કીધું. આ પ્રસંગ મને અત્યારે કેવો બહુ ગમે છે, સત્ય ઘટનાનો પ્રસંગ છે. એટલે દરબાર સાહેબે કીધું કે હું શું કરું, મારી પાસે માગવા વાળા આવે છે અને મારાથી રહેવાતું નથી. હું જાણું છું કે આપણી પાસે રૂપિયા ઓછા છે, પણ છતાંય માગવા વાળા આવે અને મારા હાથથી અપાઈ જાય છે, મને પોતાને એનું ભાન નથી રહેતું, હું શું કરું? અને ત્યારે કારભારીએ કીધું કે બાપુ, ગોળ હોય ને અહીંયા માખીયું આવે. આ શબ્દ પકડજો. મેં શરૂઆતમાં કીધું ને, શબ્દની મજા છે સાહેબ. કારભારી એમ કીધું કે ગોળ હોય ત્યાં માખીયું આવે, એનો મતલબ એવો નહીં કે બધાને દે કરું. અને આ શબ્દ કારભારીના હૃદયની અંદર જસદન દરબાર સાહેબ હાલા ખાચરને વાગ્યા હતા કે ગોળ હોય ત્યાં માખીયું આવે. રાતના 12-1 વાગ્યા છે. દરબાર સાહેબને ઊંઘ આવતી નથી. માણસને મોકલો કે અત્યારે ને અત્યારે કારભારીને દરબારગઢમાં લઈ આવો. અને ભર ઊંઘમાંથી કારભારીને ઉઠાડીને કોઈ માણસ જ્યારે દરબારગઢમાં લઈ આવ્યો, આંખું ચોળતા ચોળતા કારભારી આવ્યા તો જસદન દરબાર સાહેબે જમીન ઉપર ચાદર પાથરી હતી. અને એ ચાદરનો એક છેડો પકડી અને દરબાર સાહેબે જે આંચકો માર્યો ને, તો ચાદર દૂર થઈ તો એની નીચે 20-25 ગોળની ભેલીયું, ગોળના રવા પડ્યા હતા. અને દરબાર સાહેબે કારભારીને કીધું કે જોવો જોઈએ કારભારી, ગોળ ઉપર માખીઓ છે. અને ત્યારે કારભારીએ કીધું કે દરબાર સાહેબ, અત્યારે અડધી રાત્રે માખીઓ થોડી આવે, એ તો દી હોય તો આવે. આમ જ્યાં કારભારીએ કીધું ને ત્યારે દરબાર સાહેબ બોલ્યા હતા કે તો ભલા માણા, જેનો દી હોય ને એની પાસે માગવા વાળા આવે. અત્યારે આ દાતાઓનો દી છે અને દાતાઓ પાસે જ્યારે ગાયનો માટે થઈ અને જીવદયા માટે થઈ અને મૂંગા અબોલ પશુઓને જીવાડવા માટે થઈ અને આ સંસ્થા જ્યારે ટેલ નાખતી હોય, ત્યારે મને વિશ્વાસ છે કે આ દાતાઓ એમની અપેક્ષા કરતા વધારે દાન આપીને જવાના છે. અને દાતાનું જો યોગ્ય સમયે યોગ્ય સન્માન ન થાય તો મને એમ લાગે કે કાર્યક્રમ અધૂરો કહેવાય. એટલે આ ગીતને વચ્ચે ઊભું રાખી અને ધનાશાનું સન્માન કરવા માટે થઈ અને મેં આ પ્રસંગ કીધો છે. તો વિનંતી કરું પરમ આદરણીય મોરબી ધનાશાને કે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર પધારે રાયચંદભાઈ સુંદરમવાળા એમનું સન્માન કરવા માગે છે. અને જ્યારે રાયચંદભાઈ એમનું સન્માન કરે, પૂનમજી, હા ઠીક, આ જે સંસ્થા છે એ સન્માન કરવા માંગે છે. હા, કલાપૂર્ણમ જીવદયા ધામ પાલઘર તરફથી રાયચંદભાઈ સન્માન કરે છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. કલાપૂર્ણમ જીવદયા ધામ પાલઘર તરફથી. અને હવે ધનાશાને વિનંતી કરું કે આ પ્રસંગે 2 શબ્દ આપણા સુધી પહોંચાડે. મોરબી ધનાશા. કલાપૂર્ણ જીવદયા ટ્રસ્ટ, મારે હમણાં 1.5 કલાક માટે હું બહાર જાઉં છું, પાછો આવી જઈશ. પણ આજે જેનું નામ ઉપર જે પાંજરાપોળ ચાલે છે કલાપૂર્ણ, એ તમને બધાને ખબર છે કે મારા ગુરુ છે. અને આજે એવું ભંડોળ ભેગું કરો કે કલાપૂર્ણ આજે ઘણા બધા બેઠા છે, પણ એમના બધા ખીચા ખાલી કરીને જાજો. અને આ સંસ્થામાં જે પૈસા આપશે એને હજારોના હિસાબે પૈસા મળશે. કલાકારો એટલા બધા આજે છે કે તમને બહુ આનંદ આવશે. હું 11:30 અને 12ની વચ્ચે પાછો આવીશ. પણ આજે રાયચંદભાઈની આપણે આમાંથી તો 90% માણસોએ જોયું નહીં હોય, પણ ત્યાંની સેવા જુઓ. એની મેન સેવા છે બીમાર ઢોરોની. એ જે બીમાર ઢોરોની જેમ આપણે આપણા મા બાપની સેવા કરીએ એવી રીતના આ પાંજરાપોળમાં સેવા થાય છે. ને આપણા જે પૈસા છે યોગ્ય સ્તરે જશે. હું તમને એક 3 દિવસ પહેલાંનો દાખલો આપું. વારઈ ગામમાં, જ્યારે વારઈ ગામમાં મને બોલાવવામાં આવ્યો, મને ખ્યાલ પણ નહીં કે મારું સન્માન કરશે.
એટલે મને ખબર પડી કે મારું સન્માન થશે, એટલે હું ગાડી ભગાવીને આગળ જતો હતો. એ ગામનો પ્રેમ એટલો કે એ લોકોએ સ્કૂટરો અને ગાડીઓ આડી ઊભી રાખીને મને ઉતારીને બળજબરીએ જીપમાં લઈ ગયા. એ જગ્યાએ તમે એ સીન જુઓ તો 15,000 માણસોની હાજરી હતી અને રાતના ડાયરામાં 30,000 માણસો હતા. અને એ લોકોની ધારણા હતી કે 10 થી 12 લાખ રૂપિયા થશે તો આપણને જીવદયા માટે બહુ થઈ જશે. એ ઠેકાણે મારા ધારે પ્રમાણે 35 થી 38 લાખ રૂપિયા ભેગા થયા. તો આ તો આજે આપણો જ્યાં ગામડાના માણસોએ પોતાના ખીચામાંથી 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા કરીને આટલી મોટી રકમ થઈ, તો આજે આપણે મુંબઈ શહેરના બધાએ મને લાગે આગળ બધા બેઠા વીઆઈપી માણસો છે અને નાના માણસો જોઉં જોયો કે આ ઇમિટેશન જ્વેલરીવાળા જે લાગે છે મને કે જે નાના નાના છોકરાઓ પણ આટલી ઘોર કરે, તો આ મોટા મોટા બેઠા હોય તમારા ખીચામાંથી 1000 2000 5000 આજે અહીંયા ઉપર રાખીને જાજો, જે તમારા પૈસા યોગ્ય સ્થળે જાય છે. તો મહેરબાની કરીને હું હમણાં જ પાછો આવું છું અને પછી જામશે, પણ એના પહેલા તમે 50 લાખ સુધી મેળ કરી લેજો. જય રામાબેન. અને ધન્યવાદ ધન્યવાદ. હવે જે કલાકારને રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું, તમારા મુંબઈનું ગૌરવ છે. માત્ર મુંબઈનું નહીં પણ સમગ્ર દુનિયાના લોકો જે કલાકારની ઇજ્જત કરે છે, મન ભરીને માણે છે, એવા આપની જોરદાર તાલીઓ સાથે રજૂ થાય છે. देवयानी ने विनंती करूं, मुंबई की बेहतरीन गायिका, मुंबई की मशहूर गायिका देवयानी जी. धनजी भाई धनाशाह तो गए हैं, लेकिन वो आ रहे हैं और आपकी परीक्षा आपको बताया है कि इतना होना चाहिए. अगर खिस्सा है पूरा भरा हुआ है तो खाली करना चाहिए. देखिए, एक बात है कि बम्बई मेरी जन्मभूमि है, बम्बई मेरी जन्मभूमि है, लेकिन कर्म भूमि कही जाए तो मेरी वागड़ से शुरू हो गई. क्योंकि मैंने जब से गाना शुरू किया है गुजराती लोगों में, तो पहला मेरा शुरुआत ही वागड़ से हुई है. और मैं कहूँगी कि अगर मेरी इच्छा है, थोड़ी सी शांति प्लीज़, मैं गुजराती नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे आए हैं आज कि मुझे कहा गया है कि देवयानी जी आप गुजराती गीत गा ही नहीं सकते. मुझे आते ही पहले उन्होंने कहा, बाबूलाल साहब ने, कि देवयानी जी गुजराती गीत गाना चाहिए. मैंने बोला देखो, भाषा हमारे लिए महत्व नहीं रखती, भाव महत्व रखता है. आज की ये शुक्रिया, आज की ये जो हमारी, हमेशा मैं बोलती महफिल नहीं, ये भक्ति की महफिल है. आज इस भक्ति की महफिल में मैं शुरुआत करने जा रही हूँ और वो गुजराती गीत से शुरुआत करूँगी. मेरे भाव देखिए, मेरी जात अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपके, ये दुनिया मेरे लिए अलग है. आज पहली बार मैंने जिंदगी में डायरो क्या होता है वो देख रही और सुन रही हूँ, लेकिन फिर भी इस परिवार ने मुझे यहाँ पे दावत दी है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और आपने इतनी प्यारी प्यारी भक्ति की महफिल मुझे दी है, इसलिए शुक्रिया अदा इस तरह करने चाहूँगी कि रामादेव पीर का यहाँ पे जो भजन गाया वो मुझे बहुत दिल को भा गया. अगर आपकी इजाज़त है तो मैं पीर साहब का ये गीत सुनाऊं. आपकी तालियां उस बात का सबूत रहेगी, आपकी तालियां उस बात का सबूत रहेगी कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो और आशीर्वाद दे रहे हो. हमेशा मैं मस्ती करती रहती हूँ, हमेशा काका को पकड़ती रहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, काका की बात नहीं है. आज उस परवरदिगार को याद करते हुए खास कहूँगी, लेकिन मुझे कहा गया ये गौ माता के लिए है, तो मेरा जितना नॉलेज है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहूँगी खास कि ये गौ माता का दान क्या होता है, ये मुझे समझने के लिए थोड़ा समय लगा. आप लोगों को एक बात मालूम होगी कि गौ माता की जो महत्व की बात इन लोगों ने कही वो गुजराती में कही. मेरा गुजराती बहुत सॉलिड है, थोड़े थोड़े कुछ कुछ पॉइंट समझ में आते हैं, लेकिन ये गौ माता का महत्व हर एक इंसान को, आपके वागड़ के या बाहर के भी जात के लोगों को बहुत बारकाई से मालूम है.
थोड़ी सी शांति चाहूंगी। जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा कहा जाता है अगर गौरवशाली इंसान को एक जुनून सर पे सवार हो जाता है तो उसके लिए हमेशा अपनी अच्छी बातें दूसरों को समझाया करो कि जिस तरह से आप अपना अच्छा रास्ता पकड़ते हो वैसे ही लोग पकड़ने जाते हैं। इसलिए कहूंगी कि गांव में जागृत संतु, ये संस्कृत है, गांव में जागृत संतु, गांव में संतु पृष्ठत, गांव में जागृत संतु, गांव में संतु पृष्ठत, गांव में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। इसका मतलब क्या है कि आज आप घर से निकलते हो और गौ माता के दर्शन अगर आपको हो जाते हैं तो उससे खुशनसीब आदमी कोई नहीं है। इसलिए आज ये साक्षात गौ माता के आपको दर्शन होने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता है अगर आप 2 मिनट का ध्यान करो, पीर बाबा के साथ साथ मैं ऐसा एक गीत गाऊंगी कि आप लोग झूम उठेंगे। और आज तक मुझे ये विश्वास नहीं, दावे के साथ कहती हूँ ये गाना किसी ने नहीं गाया होगा। क्यों बताओ? क्योंकि ये गाना मैंने खुद ही गाया है। थोड़ा सा ढोलक साहब, मुझे मालूम है आपको ज़रूरी काम के लिए जाना था, लेकिन फिलहाल आपकी ज़रूरत मुझे है, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो मेरा मूड नहीं बनेगा। दोनों साथ में होने चाहिए। मैं रिदम से थोड़े खेलती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और जो कोई उठेगा उसका पूरा पॉकेट यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये सोच के कोई भी उठेगा अभी। क्या बहनों बराबर है ना? ऐसे थोड़ी बहनें आके ऊपर चढ़ावा करती है, इनको भी पूरा पॉकेट खाली करने का ये सजा है। कोई भी बीच में उठा तो बहनों के लिए उठने की इजाजत थोड़ी थोड़ी है। भाई ये गुजराती है, गाने जा रही हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई तो यहाँ से सही सलामत भेज देना, इतना खाली याद रखना। आहा आप बधु ये वण मांगे शु मांगू, भारा लख धनी अवतारी, तारा चरण मां शरण बड़े, बस मांगू एज मुरारी। तीर्थ सगड़ा तारा चरणे, नकलंगी ने जा धारी, पगधार बनू तू ये नसीब बलिहारी। तारा चरण मरहु दिन रात, बिजू भले काई न भले, बिजू भले काई न भले। तारा चरण मरहु दिन रात, बिजू भले बिजू भले काई न बड़े। चढ़ो भक्ति नो रंग रंगे तो में अंग अंग, चढ़ो भक्ति नो। अगर आपकी तालियां नहीं होगी तो मुझे लगेगा मेरा गाना खाली जा रहा है। 1 2 3 4 1 2। आगे बैठे हुए काका, वो तारा चरण
हो। ना मांगू मैं हीरा मोती, ना तो सोना चांदी, ना तो हीरा मोती मांगू, ना तो सोना चांदी। तारा नाम निकंठी रामा, तारा नाम निकंठी रामा, कंठ में तो बांधी। आइए स्मरण रहे होटे रटन रहे, आइए रटन रहे होटे रटन रहे। तारा नाम नीरे मारा लीधी हाथ, के बीजू भले गाई न बड़े, के बीजू भले गाई न बड़े, के बीजू भले गाई न बड़े, के बीजू भले गाई न बड़े। एक बात है, मेरा धर्म ना होते हुए अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप लोगों का तो ये धर्म है। मैं चाहती हूँ, मेरी राशि है मीन राशि। मीन राशि आने का मतलब होता है 12 राशि में आखिरी राशि, जिसमें इंसान का आखिरी जन्म होता है। इसके बाद इंसान का जन्म नहीं मिलता है। अरे ठाम होगा होगा, 1 मोर होगा, लेकिन ये 1 मोर ऐसा होगा जिसमें मुझे बहुत धमाका करना है, लेकिन आप लोगों का साथ थोड़ा कम मिल रहा है। थोड़ा जोश होगा तो मुझे मजा आएगा, और मेरा जोश सिर्फ तालियां नहीं, यहाँ पे पूरा भरना भी चाहिए। दोनों तरफ से जोश होना चाहिए। क्या बोलती काकी, बराबर है ना?
आज काका की तरफ ध्यान नहीं, काकी की तरफ ज्यादा ध्यान है। क्योंकि काकी है हमेशा औरत होती है, घर बिगाड़ती है और घर बनाती है। इसलिए गौ माता को भी माता कहा जाता है कि माता का आशीर्वाद हो तो उसके सब संकट हरते हैं। आपको मालूम है, माता के बारे में थोड़ी सी 2-4 पंक्तियां गुजराती में बोलना चाहूंगी, चलेगा? देखो ये बात होती है, अरे हाथ मत करो, सुनो। अकेले तुम ही शख्स हो जिसने ऐसा किया। माता के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ बताओ। 33 कोटि देव जिसमें बसते हैं। आज मेरा मैं बात बताऊं, मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूं, मेरे बारे में काफी लोग कम जानते हैं। मैं ICWCA हूं। ये किसी को मालूम है नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सिंगम कॉलेज से हुई। मेरा जो नॉलेज है मैं जानना और बांटना चाहती हूँ। जो हाथ करता है सिर्फ गाने का मतलब ये धमाल होनी नहीं है। अगर आप उस भक्ति में डूबते नहीं हो, बातें समझते नहीं हो, तो उसका भक्ति का मतलब ही नहीं है। आज मैं परप्रांतीय हो, अपना अलग धर्म की होने के बावजूद मैं यही बोलती हूँ कि हमारे धर्म में ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा आप भाग्यशाली हो कि आप लोग इस धर्म में हो। तो आप यूं मत करो जनाब, आप यूं मत करो। गौ माता के बारे में जानने के लिए 2 अल्फाज ये सुनो, फिर आपको पता चलेगा कि गौ माता की बात क्या है। अगर मेरे गुजराती में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी तो चलेगा? चलेगा ना? देखो मैं बहुत खुश हो गई आज कि मैं बोलना चाहती हूँ और मुझे आप लोग मौका दे रहे हो बोलने का। देखो ये बात आई यहाँ से, थोड़ी सी शांति। जैसे मैंने कहा संस्कृत के बारे में, वैसे मैंने ये एक जगह पे पढ़ा था। बोलूं, शुरुआत करूं? हाँ, अभी कोई हाथ ऊपर नहीं करने की जरूरत करेगा मुझे लगता है। रुद्र की माता वसु की पुत्री, रुद्र की माता वसु की पुत्री हमारी गौ मैया कहलाती है। रुद्र की माता वसु की पुत्री हमारी गौ मैया कहलाती है। 33 कोटि देव उसमें, यही शास्त्र पुराण समझाती है। प्राणी मात्र की नहीं किंतु वह विश्व की माता कहलाती है। प्राणी मात्र की नहीं किंतु वह विश्व की माता कहलाती है। उपकार एना ओछा નથી, उपकार एना ओछा નથી, ए ज्ञान विज्ञान थी समझाई छे। बराबर है, क्या बात है। अब ये आखिरी 4 लाइनें, इसके बाद मैं गाना गाऊंगी। कामना सर्वनी पूरी करे, कामना सर्वनी पूरी करे, एथी एक कामधेनु कहवाय छे। कामना सर्वनी पूरी करे, एथी एक कामधेनु कहवाय छे। संशोधन एनो थया पछी साची बात समझाई छे। इसलिए कहूंगी कि ए मानो तेरी बिगड़ी हुई तस्वीर बदल जाएगी। मुकेश जी अय्या जो शीशा, ए मानो तेरी बिगड़ी हुई तस्वीर बदल जाएगी, हर एक आह मधुर गीत में ढल जाएगी। ए मानो तेरी बिगड़ी हुई तस्वीर बदल जाएगी, हर एक आह मधुर गीत में ढल जाएगी। अगर मालिक का नाम ले तू ए मुसाफिर। अरे शांति रखो, क्या फेंक रहे हो? काकी ये पूरा बंडल इधर आना चाहिए। हाँ, ए मानो तेरी बिगड़ी हुई तस्वीर बदल जाएगी, हर एक आह मधुर गीत में ढल जाएगी। अगर मालिक का नाम ले तू ए मुसाफिर, अगर मालिक का नाम ले तू ए मुसाफिर, तेरे हाथों तेरी तकदीर बदल जाएगी। एक घुट पानी पी लूं, क्योंकि इसमें मेरी पूरी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। एक बात माननी पड़ेगी, मैंने जैसे पैकेट का वास्ता दिया, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ये बात माननी पड़ेगी, अभी यही बात लागू रहेगी। जो भी खड़ा होगा उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, ठीक है? लाल मोरे लाल की चित खूत लाल देखना मैं गई, सुबह भी हो गई लाली। गाऊं? ओ लाल मोरी पथ रखियो मला छोला लड़ सिसनी लाल।
शाबाश कलंदर तमादम मस्त कलंदर अली दम दम देवी अंदर तमादम मस्त कलंदर अली दम पहलाना फूलाल मुरी पत रखियो पला झुला लड़े सीते दीना से बरदास की शाबाश कलंदर मस्त कलंदर अली दम मस्त कलंदर अली दम पहलाना तमादम मस्त कलंदर फूलाल मुरी लाल मुरी अली अली ओए होए अरे अरे छारी छराग तर बलड़ हमेशा धीरे गो करे करे रे मा करे करे रे गा करे करे सारे रे गा गा मा मधानी सा सनी नी दा गा 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 रे रे सनी दा गा गा रे दी दी दा गा गा रे सारी रे गा तारे चराग तर बलड़ हमेशा चारे चराग तर बलड़ हमेशा पंजवा में बालड़े आयो बला झुला लड़े हो पंजवा में बालड़ा पंजवा में बालड़े आयो बला झुला लड़े सीते दीना से बरदास की शाबाश तमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर तमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर फूलाल मुरी पत रखियो पला झुला लड़े सीते दीना से बरदास की शाबाश कलंदर तमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर तमादम मस्त कलंदर फूलाल मुरी लाल मोरी अरे अरे जोरदार तालियां हरदम पीरा तेरे घर हुए पीरा पीरा हरदम पीरा तेरे घर हुए हरदम पीरा तेरे घर हुए नाम अली मेरा हर लला झुमला लड़ हो नाम अली मेरा देखो अभी तक कोई भी इस मंच से नीचे नहीं उतरा है। अब मैं उतरने की जरूरत करती हूँ, खाली आपकी तालियों के ऊपर गाऊंगी। कमान क्या काका, बस क्या, ताली बजाओ। जो भक्ति करना चाहता है सच्चे दिल से, पैसे की बात नहीं है, जो दिल से करना चाहता है हर शख्स हाथ ऊपर करके ताली बजाएगा, हाथ ऊपर करके ताली बजाएगा। हरदम पीरा तेरे घर हो
हिम्मत है, उनमें ये हिमाकत करने की मैं जुर्रत कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों से एक सच बात बोलना चाहती हूँ कि इतने बड़े आर्टिस्टों का आशीर्वाद लेके मैं यहाँ बैठ के अपना एक जुनून दिखा रही हूँ, लेकिन आपका धर्म होते हुए आपका जुनून इतना नहीं दिख रहा है। मैं बोलती तब तालियां बजाते, मैं बोलती तब हाथ ऊपर करते। हर एक भक्ति स्लो हो, फास्ट रिदम की हो, आपको सिर्फ भक्ति करने आना चाहिए। अगर सच्चे दिल से, पहले रो में जितने भी दिग्गज बैठे हैं, सच्चे दिल से, ये आखिरी अंतरा है, मेरी इज्जत की बात है। ऐसा ना हो कि दिव्यानी जी ने हमें कोई कलेक्शन दिया ही नहीं। ये इज्जत की बात है और तमाशा जब आएंगे तो बोलेंगे नहीं, दिव्यानी जी ने कुछ तो हाथ धार लगाया। मैंने पहले कहा है मेरी भाषा नहीं है, फिर भी मैं जुर्रत करी तो आपको भी साथ देना चाहिए। देंगे काका, इज्जत की बात है, सबसे बड़ा हाथ पर आपका होना चाहिए। करो शुरुआत, एक ही अंतरा है, अगर ये पूरा रो नहीं भरा तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। कल पूरे वागड़ पत्रिका में छाप के आएगा देवयानी जी ने कुछ नहीं किया। तैयार है पहला रो, रेडी, शुरू करो। चारे चिराग तरह बलिड हमेशा, पहला रो पूरा। चारे चिराग तरह बलिड, नहीं उठेंगे, गाना आगे बढ़ेगा ही नहीं। चारे चिराग तरह बलिड हमेशा, चारे चिराग तरह बलिड हमेशा। पंजवा में मालड़ आयु बला चला लड़, ओ पंजवा में मालड़। एक मिनट भाई, आप बाद में उठाओ, पहले मुझे भरने तो दो, नहीं तो खाली रहेगा वापस। रुको, ये नीचे डालो, पूरा भरना चाहिए। अब ये वागड़ की इज्जत की और मेरी इज्जत की बात है। अरे रुको, पूरा भरने दो, उसके बाद उठाओ। चारे चिराग तरह बलिड हमेशा, अभी तक खाली है, कुछ करो। चारे चिराग तरह बलिड हमेशा, पंजवा में मालड़ आयु बला चला लड़, हो पंजवा में मालड़। पंजवा में मालड़ आयु बला चला
अरे इसके 2-3 अंतरे मैं 5 बार गा चुकी हूँ। अब बाद में आती हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेके, ठीक है? एक बार जोरदार तालियों से दिव्यानी को जोरदार तालियों से बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। डायरे के स्टेज पे आके गुजराती नहीं आती थी, फिर भी गुजराती में गाया, हिंदी में भी गाया और पूरा जोश अपने गाने में डालकर सबका मनोरंजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी जाહેરાત કરવા જઈ રહ્યો છું। દાતાઓને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું। 2222 રૂપિયા ગિંદ્રા કુંવરજી વિશલજીભાઈ, જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ। 2100 રૂપિયા ખીમઈબેન લગધીર ગોવર ગિંદ્રા, જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને પણ વધાવીએ। 5001 રૂપિયા ડુંગરસિંહ હિરજીભાઈ ગળા સામખિયાળી, ખૂબ ખૂબ આભાર। અને એક મોટી જાહેરાત ત્રીજી વખત કરવા જઈ રહ્યો છું। આવી જાહેરાત 10 વખત કરવાની છે મારે, હજી તો 3 થયા છે, હજી 7 બાકી છે, એટલે ત્રીજી વખત એક નામ જાહેર કરવા જઈ રહ્યો છું। શાંતિબેન લાલજીભાઈ એમનું નામ છે અને રકમ છે 51,000 રૂપિયા પૂરા। જોરદાર તાળીઓથી આપણે શાંતિબેનને પણ વધાવીએ। 3,100 રૂપિયા દેવજી ગાલા, ખૂબ ખૂબ આભાર। 11,000 રૂપિયા દિનેશ મહેતા અને 18,000 રૂપિયા જેઠાલાલ મુરજી ગડા તરફથી આપણે ત્રણેય દાતાઓને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ। અને એક જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યો છું। ક્ષત્રિય સમાજના માજી પ્રમુખ એક સુંદર જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યો છું। કાનજીભાઈ બચુભાઈ રીટા લાકડિયા, કાનજીભાઈ બચુભાઈ રીટા લાકડિયા, બોલો રકમ 1,51,000 રૂપિયા। જોરદાર તાળીઓથી આપણે આજના આ કાર્યક્રમની સૌથી મોટી રકમનું દાન કાનજીભાઈ તરફથી મળે છે 1,51,000 રૂપિયા। જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લેવા જોઈએ। ધન્યવાદ। અહીંયા બેઠેલ એક પણ વ્યક્તિ તાળી ન પાડે એવું ન બને। કાનજીભાઈ લાકડિયા 1,51,000 રૂપિયા। ક્ષત્રિય સમાજના માજી પ્રમુખ પ્રતાપસિંહજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને સત્રા પ્રોપર્ટીના પ્રફુલભાઈ સમા જે આપણા માનવંતા મહેમાન છે, અતિથિ છે, એમનું અહીંયા આજના કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે। એક નાનકડી જાહેરાત કરી અને આજના અમારા બીજા વક્તા મારા પરમ મિત્ર જીલુદાનભાઈને આ સ્ટેજનું સુકાન સોંપવા જઈ રહ્યો છું। જાહેરાત ઘાટકોપરનું મિની રણુજા ધામ, ઘાટકોપરનું મિની રણુજા ધામ એટલે અમૃત અક્ષરધામ ઘાટકોપર, જેનું 5મું વાર્ષિક મહોત્સવનું અધિવેશન 21મી ફેબ્રુઆરી 2010 ને રવિવાર સાંજે 4 થી 10, ફરીથી તારીખ બોલું છું 21મી ફેબ્રુઆરી 2010 રવિવાર સાંજે 4 થી 10 રાખવામાં આવેલ છે। અમૃત અક્ષરધામ ઘાટકોપરનું વાર્ષિક મહોત્સવનું અધિવેશન। તો રામદેવ પીર ભગવાનના દર્શન માટે પધારવા સૌ કોઈને નમ્ર વિનંતી કરવામાં આવે છે। 21મી